Welcome to today's webinar, Introduction to Medical Device Rules 2017, a brief overview of PrEP requirements, hosted by Shifa International Hospital. I am Wajiha Khan, an ASHP resident pharmacist, and I'll be moderating this session. Today's topic is highly relevant as regulatory oversight of medical device continues to evolve under PrEP framework. This session aims to provide a clear understanding of compliance expectation under the Medical Device Rules 2017. It's my pleasure to introduce our speaker, Ms. Naima Manzoor. She is ASHE certified in emergency medicine pharmacy and holds an MBA in health services management. She currently serves as assistant manager purchase with over 11 years of experience in hospital pharmacy and procurement at Shifa International Hospital. Ms. Naima oversees legal procurements, ensure PrEP compliance. Her expertise in regulatory process and supply chain efficiency makes her well equipped to lead today's session. Before we begin, please note that there will be a dedicated question and answer session at the end. I encourage you to note down any question you may have during the presentation so we can address them afterwards. Ms. Naima, over to you. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Ms. Fajiha, for a brief and detailed introduction. So, we will start our topic, which is Introduction to Medical Device Rules 2017. The most important question about this topic is what is the importance of this topic and why it is necessary for healthcare professionals and pharmacists specifically to understand the importance of this rule. So I will try to disseminate all the information and all the practical steps that we are following in our hospital, starting from the distribution of medical devices and its procurement processes, and what are the steps and how can we identify the medical devices, their classification, and what is the body who is responsible to regulate all these rules. So I hope that it will be a very informative session for all of you. As we all are aware that DRAP, Drug Regulatory Authority of Pakistan, is the main body who is responsible for safe and effective distribution of drugs, medicines along the country. So this authority is also responsible for these medical device rules. So medical device rules come into force according to the section 23rd of Drug Regulatory Authority of Pakistan, and the main purpose of these rules is to regulate any step that is involved in the registration, manufacturing, import, export, sales, distribution of the medical devices in Pakistan. And the main purpose and the basic aim behind this is to ensure that public access to safe, effective, and high quality medical devices. So we will start with the basic definition. What is a medical device? This is the most important question because being a pharmacist or being a healthcare professional, we must be aware of anything that comes under this umbrella. So it is a broader term according to the draft. Draft has given us a broader definition which says that medical devices include any instrument, apparatus, any implement, machine, appliance, implant, reagent, and all these things that are mentioned here. Either they are intended to be used by the manufacturer alone or in combination for human beings or animals for one or more of the specific medical purposes which are mentioned below. It can be diagnosis of a disease, it can be prevention of a disease, monitoring, treatment, alleviation of disease, and all these goals. So we can see from this definition from this slide that medical devices range is basically a broader spectrum, and it's covered a number of items from a very small, it can be a simple tongue depressor, or it can be a life-saving vent machine or any other thing, or any implant even. So all these items come under the umbrella of a medical device. And the main body who is responsible to regulate all these is the Medical Device Board.
medical device board comprises of different members. The person who is the head of this committee or head of this board is the director of medical devices, then additional director and other representatives who are expert in this and who are nominated by the authority. And the medical device board is basically the body who regulates all this in different steps. It is involved in registering or in listing of medical devices, and it provides licenses for the establishment who is involved either in the manufacture or import export of that medical device, and they are involved in the issuance of these certificates. And basically this body examines or inspects any premises, or it receives the applications and then issues different kinds of licenses which are required. And the main function as I said earlier, it involves all the steps, and it includes the examination and evaluation of applications. And if there is any certain appeal, then this medical device board listens to the appeals. And if there is any dispute in the classification of a medical device, which I will be explaining in my next slides, that what is the risk. So first step yahi tha, as I said earlier, that all medical devices that are sold in Pakistan, either imported, exported, or locally manufactured, must be registered with DRAP. So scope of these rules, as I indicated, as I said earlier, these rules cover a wide range of medical devices, including in vitro diagnostic devices and surgical dressings, surgical bandages, implants, equipments. जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक छोटी से छोटी बैंडेज से लेकर एक लाइफ सेविंग कार्डियक इक्विपमेंट, वो वेंटिलेटर हो सकता है, वो कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, दे ऑल फॉल इन दिस अम्ब्रेला. And DRAB is the main body who is responsible for the enforcement and implementation of these medical device rules. नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं. यू ऑल कैन सी इट्स अ नॉन वोवन पेपर सर्जिकल टेप, and it indicates some specs here like this and this and this. और उसके अलावा अगर आप इसकी दूसरी पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ ये इंफॉर्मेशन मिलती है. ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली ड्रग मेडिकल डिवाइस का जो लेबल है, ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इनके इस लेबल को देख के हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए यहाँ डाली ताकि मैं आपको मज़ीद इस पे इंफॉर्मेशन देख सकूँ. बिकॉज प्रैक्टिकली हमने जब इस पे एक्ट करना शुरू किया तो हमें भी स्टार्ट में टू बिगिन विद इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. बट with the time, with the passage of time, and by studying and by practically doing and managing the things, it was very easy to reach the final point. So I hope I can deliver the maximum of my knowledge to you people. Next एक और एग्जाम्पल है. इसमें लेबल को आप देख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या मेंशन है, और इसको देखे हम क्या एक्सेस कर सकते हैं. ये मैं नेक्स्ट आपको कोई भी आप डिवाइस उठाएं, कोई भी इक्विपमेंट उठाएं, उस पर ये इंफॉर्मेशन हो, इसे देखे हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. बीइंग अ फार्मासिस्ट एंड बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स. सो जो मेडिकल डिवाइस रूल है, बेसिकली इसके अंदर ये 6 स्केड्यूल्स हैं. इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर. Section A and B, it covers general classification of devices and grouping of devices. The purpose is, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, जो क्राइटेरिया ड्रैप ने डिसाइड किया है मेडिकल डिवाइसेस के अम्ब्रेला में, एम्बियंट में, it covers a lot of items. So उसको to begin with और to classify different क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की गई, और फिर इसकी ग्रुपिंग on the basis of single, either it is used separately or in combination, either it is used in vitro diagnostic and cluster. ये दो बेसिक ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन जो हैं, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो के मेडिकल डिवाइस रूल के स्केड्यूल ए एंड बी में दी गई हैं. स्केड्यूल सी के अंदर जो है वो डिफरेंट फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है. जैसे कोई भी फर्म अगर एक मेडिकल डिवाइस को की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई करती है तो उसकी फी एंड फॉर्म्स,
एंड अगर उसको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है इंपोर्ट के उस मेडिकल डिवाइस के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए क्या फी होगी, तो ये डिफरेंट फी स्ट्रक्चर इज अवेलेबल इन स्केड्यूल सी। डी के अंदर लाइफ सेविंग एंड लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल डिवाइसेस को मेंशन किया गया है। इसको प्रायोरिटाइज किया गया है फॉर दिस पर्पस कि अगर हम ओवरऑल मेडिकल डिवाइसेस की बात करें या उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो जो स्केड्यूल डी के अंदर वो लाइफ सेविंग आइटम्स उन मेडिकल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मस्ट और मैंडेटरी हैं, कि अगर कोई भी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेटरी जो भी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो लाइफ सेविंग सेग्रीगेट कर दिए गए। देन स्केड्यूल ई के अंदर वो कुछ आइटम्स बताए गए हैं जो कि प्रीवियसली हमारे ड्रग एक्ट में 1976 में ड्रग कैटेगराइज किए गए थे और वो एज अ ड्रग रजिस्टर्ड थे। उन आइटम्स के नेम अवेलेबल हैं। और स्केड्यूल एफ के अंदर जो है आउटसोर्सिंग, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना चाहती है या डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स करना चाहती है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्केड्यूल एफ में मेंशन है। अगेन मेडिकल डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप इन स्केड्यूल ए एंड बी। उसके पर्पस क्या है, फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एनलिस्टमेंट। इसको मैं फर्दर सेग्रीगेट करूंगी कि कौन से मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का वर्ड यूज करना है और कौन से मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमने इनलिस्टमेंट का वर्ड यूज करना है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के मेडिकल डिवाइस बोर्ड और मेडिकल डिवाइस रूल्स और ड्रैप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन के लिए, दोज आर इंटरनेशनल गाइडलाइंस व्हिच आई हैव मेंशनड हियर। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टास्क फोर्स एंड इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम, जो ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन है वो इन गाइडलाइन से डिराइव की गई है। और इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स ऐसा भी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक इनिशियल स्टेप है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में स्टिल अभी भी काफी इश्यूज हैं। बट इफ सेम आइटम इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस, उस तरह के डिस्प्यूट आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए मेडिकल डिवाइस बोर्ड डिसाइड करता है। इधर वो जो इस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको खुद अप्रोच कर सकते हैं, या जो भी इसमें चेंजेस हैं वो मेडिकल डिवाइस बोर्ड डिसाइड कर सकता है। कोई भी जो अपील्स हैं किसी भी पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसको भी मेडिकल डिवाइस बोर्ड रिजॉल्व करता है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको कैटेगराइज किया गया है बेस्ड अपॉन द रिस्क। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहाँ से आगे हम ये डिसाइड करते हैं, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फार्मासिस्ट, कि मेरा ये पर्टिकुलर डिवाइस किस क्लास में फॉल करता है और इसके ऊपर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होती हैं। सो फोर मेन क्लासेस आर ए, बी, सी एंड डी, जिसमें जो क्लास ए जो है वो हमारी रिस्क बेस्ड लीस्ट रिस्की क्लासिफिकेशन है। लीस्ट रिस्की आइटम्स जो हैं दे फॉल इन द क्लास ए। देन कम्स क्लास बी, स्लाइटली हायर रिस्क, क्लास सी more higher risk, and D highest risk for the patient health। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन में इनको जो फर्दर जो डिवाइड किया गया है दैट इज बेस्ड अपॉन दियर इन्वेजिवनेस एंड नॉन इन्वेजिवनेस। लेकिन इट्स अ कम्प्लेक्स एंड इट्स अ टेक्निकल थिंग। समटाइम्स हमारे नॉन इन्वेसिव आइटम्स भी हायर रिस्क क्लास में फॉल कर सकते हैं और समटाइम्स हमारे इन्वेसिव आइटम्स भी लोअर क्लास में फॉल कर सकते हैं। सो इसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टेप वाइज आपको फर्स्ट ए बी सी डी की अंडरस्टैंडिंग हो रिस्क बेस्ड, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट क्लास ऑफ दैट आइटम। ये कुछ एग्जाम्पशंस की डेट्स यहाँ मैंने मेंशन नहीं की। मेडिकल डिवाइस रूल्स इनिशियली 2017 में इम्प्लीमेंट किए गए, लेकिन इसमें एग्जाम्पशन पीरियड दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ दीज मेडिकल डिवाइसेस, जिसके लिए जिसमें ए और बी के लिए कुछ एग्जाम्पशन थी एंड सी एंड डी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर थे। बट इन रिसेंट ईयर्स जितनी भी जो एग्जाम्पशन थी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड इनलिस्टमेंट और सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को लेके उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी एग्जाम्पशंस थी दे आर नाउ विड्रॉन। अब ड्रैग इसमें एक्टिवली खुद भी वर्क कर रहा है और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी करना चाहिए, कर रहे हैं। और खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हमारे लिए अब मेडिकल डिवाइसेस की जो 4 क्लासेस थी उन सब के लिए हमने
रूल्स इम्प्लीमेंट कराने हैं। और इन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स भी वक्तन फवक्तन होती हैं, जिसमें जो अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट थी उसमें ये प्रायोरिटाइज किया है ड्रैफ्ट ने इन इन रूल्स के अंदर के वो लाइफ सेविंग आइटम्स, कोई भी फर्म, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी डिजास्टर की केस में जो अपनी जो सप्लाई है वो टुवर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रेफरेबली फर्स्ट स्टेप पे उनको रखेगी। ये एक रिसेंट अमेंडमेंट थी, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, व्हाट आर द क्लास ए मेडिकल डिवाइसेस हैविंग द लो हैजर्ड, devices that present low risk to the user. Examples include tongue depressors and disposable mask. ये just two examples मैंने यहाँ पर कोट की हैं। Any such device with the lowest risk comes in the class A. Low to moderate hazard, moderate level of risk such as hypodermic needles and suction equipments. And class C includes higher risk items like lung ventilators and bone fixation plates. And class D, which contains high hazard and highly risky items, device presenting the highest risk such as heart valves, implantable defibrillators, pacemakers. All these devices come in the class D. सो ये एक बेसिक रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इनिशियल क्लासिफिकेशन, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि जो रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टेप वाइज किस स्टेप से होनी चाहिए। सो डी, सी एंड डी वर स्टार्टेड and then we move toward the draft, move toward the A and B, and now all these four classes are to be covered, and these should be fully implemented and regulated in any organization or in any other setup. ये मैंने एग्जाम्पल कोट की है क्लासिफिकेशन की, जिस बेस पे, जिन गाइडलाइंस की बेस के ऊपर हमारे मेडिकल डिवाइस रूल की जो क्लासिफिकेशन और जो ग्रुपिंग है। सो दिस इज डिराइव फ्रॉम द IMDRF फोरम। उनके अकॉर्डिंग एनी नॉन इन्वेसिव डिवाइस, आई होप I can explain it better to you. Any non-invasive device, rule number 1 says, are in contact with the injured skin and intended as a barrier for comparison or absorption, comes in class A. So non-invasive है, least risky है, skin, injured skin के साथ contact है, but it is least risky, so it fall in the class A. Unless, next clause, intended principally for wounds which breach the dermis. Now दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां हमने कहा ये चीज सुपरफिशियल नहीं है, डर्मस ब्रीच हो रही है। सो इन दैट केस इवन इट इज अ बैंडेज और अ ड्रेसिंग, इट विल बी इन क्लास बी। और इससे भी अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर आए, नाउ द क्वेश्चन इज, ये टेक्निकल पॉइंट है जिसके लिए एक फार्मासिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओवरऑल एक नॉन इन्वेसिव ने ए में फॉल करना था, बट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द क्लॉजेस जिसके लिए वो उसकी क्लास चेंज होके बी और सी में चली गई। द लास्ट एग्जांपल इज द only through the secondary intent, it is not only with the primary intent। इस केस में वो कोई भी बैंडेज है that falls in the class C। सो ये जस्ट एग्जांपल्स मैंने इसीलिए ऐड की हैं ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो, इट इज नॉट दैट मच सिंपल और इजियर कि हमने एक रूल पढ़ा, एक क्लॉज पढ़ी एंड वी सेड दैट इट इज ए। वी हैव टू अंडरस्टैंड and we have to teach others, other staff, other healthcare professionals। And rule number 2 says, any channel or any instrument, any device which is used to channel or store liquids, tissues, gases intended for the eventual infusion or administration comes in class A, right? But इसके आगे classes में हम देखें, if it is connected to active medical device, it comes in, or higher, it comes in class B। And if it is used to store body fluids, it comes in class B। अब यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है किस केस में इस तरह का आइटम, इस तरह का मेडिकल डिवाइस सी में फॉल करेगा, स्पेशली फॉर ब्लड बैग्स। सो अगेन वही कि हमने जब स्टार्ट किया एक सिंपल डेफिनेशन थी, इस आइटम को ए में फॉल करना चाहिए, बट व्हाई इट कम्स इन बी एंड इट कम्स इन सी। सो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ऐड की। नाउ इसी तरह की, इस तरह की दो एग्जांपल्स में इन्वेसिव डिवाइसेस की अगर आपको दे देती हूँ। इन्वेसिव थ्रू बॉडी ऑरिफिस स्टोमा, नॉट सर्जिकली। अब यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि सर्जिकली इन्वेसिव वो नहीं है,
तीन फर्दर क्लासिफिकेशन आगे इसकी बताई गई हैं। ट्रांजिट यूज है, शॉर्ट टर्म यूज है एंड लॉन्ग टर्म यूज। नाउ ट्रांजिट यूज को मेडिकल डिवाइस रूल ने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन which is less than 60 minutes or less than 1 hour. सो इस टिपिकल पीरियड के लिए इस तरह का कोई भी आइटम अगर बॉडी के साथ टच हो रहा है, दैट फॉल्स इन क्लास ए। शॉर्ट टर्म यूज इज फ्रॉम 1 hour टू लेस देन 30 days, इट कम्स इन क्लास बी। अब इसमें मजीद देखिएगा कि इफ अगेन इट इज यूज इन ओरल कैविटी और ईयर कैविटी और नेजल कैविटी, देन अगेन even if its duration is for short term use like 1 month, but it comes in class A. सो लॉन्ग टर्म यूज के जो जितने भी आइटम्स हैं दे कम इन क्लास सी। और फिर उसमें फर्दर जो क्लैरिफिकेशन है, अगर ओरल और ईयर कैविटी के थ्रू है, उसमें ये क्लास बी में कब फॉल करेंगे। और जो नॉन सर्जिकली इन्वेजिव जो ट्रांजिट यूज के आइटम्स हैं वो क्लास बी में फॉल करेंगे, एक्सेप्ट फॉर द रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हॉस्पिटल में मोस्टली रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमारे पास ये आते हैं जो कि क्लास ए में फॉल करेंगे। और फिर फर्दर क्लासिफिकेशन के वो इफ द सप्लाईज इन्वॉल्व एनर्जी एज आयनाइजेशन रेडिएशन, वो सी में फॉल करेगी। और फॉर यूज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस सर्जिकली इन्वेजिव है और इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इन दैट केस इट फॉल्स इन क्लास डी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारा डिवाइस रूल जो है वो इनको क्लियर कवर करता है। ये पूरी क्लॉजेस बताई गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव, शॉर्ट टर्म यूज, डर्मस ब्रीच करता है या जितना भी रिलेशन उसके अकॉर्डिंग वो किस क्लास में फॉल करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, और अगर हमें इन डेप्थ मेडिकल डिवाइस रूल पता होंगे तो हम एक चीज ये मैं मतलब इसको लेके मैं श्योर हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा सा डीप, कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल इसको अगर पढ़े, स्टडी करे, तो वो एक चीज को देख के उसकी क्लास को डिसाइड कर सकता है, बता सकता है, उस पर आइडिया दे सकता है। सो अगेन दिस इज कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन ऑफ द रेगुलेटरी कंट्रोल्स के हमारी जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू रिस्क बेस, दैट इज ए बी सी एंड डी, एंड एज वी मूव टुवर्ड द हायर क्लास द रिस्क इंक्रीजेस। एडिशनल क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए स्पेशल जो क्लासिफिकेशन तरतीब दी गई है वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट डिपेंड्स। डिवाइसेस कैन बी यूज इधर अलोन और इन कॉम्बिनेशन, but intended for different purposes, may be reclassified according to the new intended use. So जैसे मैंने पहली स्लाइड्स में कहा था कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, they can be either grouped as a single or they can be grouped as a family of medical device along with accessories. उनका कॉमन पर्पस भी हो सकता है, उनका कॉमन यूज जिसके लिए भी वो यूज हो सकते हैं। एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड बी अकोमोडेटेड बाय दीज रूल्स। इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे हम इस पे मजीद वर्किंग हो रही है इन डेप्थ, उस तरह से रिक्लासिफिकेशन भी उन डिवाइसेस की हो रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर एक ही डिवाइस को एट इनिशियल टाइम पे क्लासीफाई ए में किया गया और बाद में उस एस्टेब्लिशमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी भी चैनल से पता चलता है, तो उसकी रिक्लासिफिकेशन हो सकती है। क्लासिफिकेशन इम्पैक्ट्स, दो तरह की क्लासिफिकेशन जो मैंने बताई थी, जो दो तरह की मेन रजिस्ट्रेशन जिसको मैंने सेग्रीगेट करना है, दैट इज इनलिस्टमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। सो वी मस्ट अवेयर ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल डिवाइसेस एंड इनलिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस। क्लास ए के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज इनलिस्टमेंट। जब भी हम बैंडेजेस की जो क्लास ए में फॉल कर रही हैं उनके लिए बात करेंगे, सो वी ब्रॉडर टर्म इज इट्स रजिस्ट्रेशन। बट अगर हम उसकी जो मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की थी उसमें बात करें, तो वहां पर जो कैटेगरी ए का जो क्लास ए का आइटम है दैट इज इनलिस्टेड। में आई विल मूव बैक टू द स्लाइड टू शो यू द पिक्चर। क्लास बी सी एंड डी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद द मेडिकल डिवाइस रूल्स, एंड दीज रूल्स ऑल्सो गवर्न एप्लीकेशंस फॉर चेंजेस। इसमें वो सारी एप्लीकेशंस, वो डिफरेंट फॉर्म्स भी आते हैं जो जिनके थ्रू हमने अप्लाई अगर करना है प्रायर टू द सर्टिफिकेट, हमें सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इंपोर्ट का सर्टिफिकेट लेने से पहले जो एप्लीकेशन हैं वो भी इन रूल्स में स्पेसिफाई कर दी गई हैं। इससे हमें ये हेल्प हो रही है प्रैक्टिकली ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर कि अगर मेरा कोई भी मेडिकल डिवाइस में उसके बारे में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ कि योर प्रोडक्ट इज, योर डिवाइस इज ड्रैप रजिस्टर्ड और इन लिस्टेड, और अगर वो
एप्लीकेशन के प्रोसेस में है, दे सेड नो वी हैव अप्लाइड फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन और इनलिस्टमेंट, सो इन दैट केस वी नो व्हाट फॉर्म दे शुड सबमिट अस, किस फॉर्म में वो हमें एप्लीकेशन वो सबमिट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, विच इज अ प्रूफ फॉर अ फार्मासिस्ट के ये जो आइटम है इट इज अप्लाइड फॉर द ड्रैप। सो बेसिक पर्पस यही है कि जो भी चीज किसी भी प्रेमिसेस में मैन्युफैक्चर हो रही है, उस प्रेमिसेस को हमारा मेडिकल डिवाइस बोर्ड इंस्पेक्ट करे, क्या उसमें सेफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग की, स्टोरेज की, एंड देन टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है, सो उस इंपोर्ट की कंडीशंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स मेट अप हो रही हैं, दैट प्रोडक्ट इज सीई मार्क, दैट मीन्स दैट इट इज सर्टिफाइड इन यूरोपियन कंट्रीज, सो वो हमारे पाकिस्तान में किस चैनल के थ्रू आ रही है, उसके ऊपर प्राइसिंग, कॉस्ट, ये सब कुछ इस मेडिकल डिवाइस रूल्स में कवर होता है। सो I will show you the example once again. जी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 4 क्लासेस A B C and D, और ए के लिए वर्ड यूज होगा इनलिस्टमेंट का। सो इन दिस केस अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके ऊपर जो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज है, दिस इज MDME। सो ये दिस E इज द बेसिक थिंग विच इंडिकेट्स कि ये ए क्लास प्रोडक्ट है, एंड ELM स्टैंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। दैट मीन्स कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है क्लास ए में फॉल कर रही है और ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, सो इन दिस केस यहाँ MDIR इट्स विजिबल, और इस पे MRP प्रिंटेड है जो कि पहले वाले में भी थी। सो दिस MRP इज ऑल्सो इंडिकेशन कि ये चीज रैप रजिस्टर्ड है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। हमारे बहुत सारी रजिस्टर्ड या इनलिस्टेड आइटम्स पे अगर वो MRP नहीं है तो हम ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ये नहीं कह सकते 100% कि इट इज नॉट रैप रजिस्टर्ड। दिस इज अनदर थिंग, यू कैन सी दिस इज IR। इस केस में हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो आइटम है ये क्लास ए में फॉल नहीं करता, ये आइटम BC या D में फॉल करेगा इन जनरल, और ये इंपोर्ट आइटम है, MDIR इंडिकेट्स। इसी तरह इस आइटम को भी देखिए, इसके भी स्पेक्स में ये डिटेल्स शेयर हैं और प्लस ये डिटेल्स शेयर हैं। अब इस आइटम को अगर हम बिंग फार्मासिस्ट उठाएं तो यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड डिटेल्स अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग ELM या जो उसकी MDIR MDMR नंबर, बट दिस इज द थिंग विच कैन क्लिक मी, आई कैन से सॉरी इसमें MDIR है, आई एम सॉरी, ये इट्स अ टेक्निकल थिंग, आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें बहुत फोकस करके ये जो 4-5 बेसिक लमसम इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको क्लियर कट देख सकें तो हम ये बता सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो ये मेडिकल डिवाइस ड्रैप रजिस्टर्ड इनलिस्टेड है, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, ये इंपोर्ट है, जो भी इसके स्पेक्स हैं। सो ये एग्जांपल्स जस्ट आपको मैंने दिखाए। मूविंग बैक टुवर्ड द स्लाइड, मेन स्लाइड। As I told you earlier, that medical device board is the main body who is involved in the issuance of licensing, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के हैं, इंपोर्ट के हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के केस में ये इंश्योर किया जाता है जो प्रीमिसेस जो है वो प्रॉपर है अकॉर्डिंग एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स है, एरिया वाइज क्या वहां पर किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, एंड इंपोर्ट के केस में उस आइटम की जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जहां पर भी उसका यूज है, जो कि उसका जो ओरिजिनल कंट्री है, जो सोर्स है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद रैप हमें ये गो अहेड देगा कि यस दिस प्रोडक्ट इज ओके टू गो। And separate license is required to for each premises, as I told you earlier, manufacturing का है, import का है, application procedures for establishment licenses including required forms, fee and documents are detailed, जो कि इस रूल के अंदर ये सारी requirements given हैं। Conditions for granting establishment licenses include suitable premises, adequate space and equipment, qualified technical staff and compliance with the rules। ये सारी requirements medical device board चेक करता है, वेरीफाई करता है, एंड देन दे इशू दी लाइसेंसेस जो भी रिक्वायर्ड हैं। एंड अगेन रजिस्टर्ड और इनलिस्टेड, ये मेन जो इन रूल का जो लम सम है वो ये है कि कोई भी मेडिकल डिवाइस जो यहाँ पर यूज हो रहा है दैट मस्ट बी इनलिस्टेड और रजिस्टर्ड, और एप्लीकेशन
का जो प्रोसेस है वो स्मूथ प्रोसेस क्या है कि जी फॉर्म्स या एप्लीकेशन सबमिट होंगी फी एंड देन सैंपल सेंड टू द मेडिकल डिवाइस बोर्ड, जिसकी बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड या इनलिस्ट करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट्स क्या है? दे कैन बी इंपोर्टेड इफ द इंपोर्टर हैज अ वैलिड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस which is ELI, establishment license to import, device enlistment and registration and suitable storage premises, and procedures for important small quantities for clinical investigations or personal use are outlined। जो भी क्लॉजेस हैं, क्योंकि ये जो मेडिकल डिवाइस रूल है ये इट्सल्फ एक काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। व्हाट आर द एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ टिपिकल मेडिकल डिवाइस? लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से मेडिसिन के लिए हैं, और वो सारी डेफिनेशंस, वो सारी मिस ब्रांडेड ड्रग, मिस ब्रांडेड मेडिकल डिवाइस, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी डेफिनेशंस मेडिकल डिवाइसेस में भी फॉल करते हैं। सो मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी अप्रोप्रिएटली लेबल्ड विद एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स, इनलिस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर्स एंड एमआरपी। आइडियल कंडीशंस ये हैं, जो कि अभी शायद 100% तो नहीं है, with the passage of time inshallah ये भी 100% हो जाएंगे। The label must be legible, permanent and prominent with the explanations for any symbols, and preferred language to be used is English, but Urdu can also be used। नाउ इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं, उनको भी मेंशन आउटलाइन किया गया है। लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन होल्डर्स मस्ट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड कंप्लाई विद ऑल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन कंडीशंस। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगेन दे शुड कंप्लाई विद द देयर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स, and importers must obtain authorization from the manufacturers, import only enlisted या registered devices। ये सारी डिटेल्स, इस सारी क्लॉजेस इन मेडिकल डिवाइस रूल्स के अंदर सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिनको मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, जिसमें फॉर्म नंबर 1 इज बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स, और उनसे पिछले स्टेप में फॉर्म्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। सो सिंपल, इसके ये जो आखिरी 3 लफ्ज हैं ये आपको बताते हैं कि ये किस मेडिकल डिवाइस की किस चीज की एप्लीकेशन है। दिस इज एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। अब ये अगेन इट्स टेक्निकल थिंग्स कि हमें इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना कि हम प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन या इनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं या कि इस्टेब्लिशमेंट। दिस इज द वेरी इनिशियल स्टेप जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस की बात हो रही है टू मैन्युफैक्चर। इसके अगेंस्ट जो फॉर्म इशू होता है दैट इज फॉर्म 3, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइस विच इज ELM, जो कि पीछे मैंने एग्जांपल में भी दिखाया। देन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 इज एप्लीकेशन this of an establishment license to import a medical device। now in this case जो लाइसेंस जो इशू होगा दैट इज ELI। और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनलिस्टमेंट और रिन्यूअल ऑफ क्लास ए, ये जो सेग्रीगेशन है इनलिस्टमेंट के लिए ये सेपरेट कर दी गई है कि क्लास ए की ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या वो इंपोर्ट के लिए, क्लास ए के लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और क्लास बी सी एंड डी के लिए कंबाइंड फॉर्म्स हैं विच इज फॉर्म 7 जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, एंड फॉर्म 7A। सो इनसे परटेनिंग जो हमें हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इंश्योर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बीइंग अ फार्मासिस्ट, अगर मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई वेंडर ये कहे कि उनकी चीज रजिस्टर्ड है, सो इन दैट केस जो हमारा मैंडेटरी फॉर्म रिक्वायर्ड है दिस इज फॉर्म 8 और फॉर्म 8A। फॉर्म 8 मुझे ये बताएगा कि ये जो भी डिवाइस है ये ओके टू गो है एज एज ए मैन्युफैक्चरिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही ओके है। और फॉर्म 8A जो है वो इंपोर्ट के लिए। सो हमारे लिए इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम देखें तो ये फॉर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्म 3, फॉर्म 4 एंड देन फॉर्म 8 एंड फॉर्म 8A। ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा काफी सारे फॉर्म्स हैं जो कि इन रूल्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक एब्रिविएशंस हैं, ये कुछ चंद एक एब्रिविएशंस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं सिर्फ इसलिए कि ये वही एब्रिविएशंस हैं जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं
और इन्हीं एब्रिविएशंस को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें और एक मेडिकल डिवाइस के ऊपर ये एब्रिविएशंस मौजूद हैं, सो वी विल बी एबल टू explain about the class or registration status of that product. MDB is Medical Device Board. ELI, Establishment License to Import a Medical Device. किसी भी फर्म के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, if they are providing us an item जो सीई मार्क है, जो इंपोर्ट है, जो जिसकी इंडिकेशंस बता रही हैं कि ये नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, ये इंपोर्ट है, इन दैट केस में जो सबसे बेसिक जो लाइसेंस है जो हमें उससे रिक्वायर्ड है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है. Then ELM means Establishment License to Manufacture a Medical Device. इस केस में हमें ये कंफर्मेशन होता है कि जो भी मेडिकल डिवाइस है ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये फर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगली इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है. MDIR इज रजिस्ट्रेशन नंबर टू इंपोर्ट अ मेडिकल डिवाइस. अब ये भी थोड़े से यहाँ से आगे की क्लासिफिकेशन टेक्निकल है, क्योंकि यहाँ से आगे हमें सेग्रीगेशन मिलती है ए की एंड BCD की. ए के लिए हमें जो वर्ड्स यूज किए वो ये हैं, MDIE एंड MDME. MDIE मीन्स enlistment. This E is enlistment. Enlistment number to import a medical device. It comes in class A. And MDME is enlistment number to manufacture a medical device. And same MDIR is registration number to import a medical device, BCD, and registration number to manufacture. I know this topic is very boring, but जो information necessary है to deliver करना, so I am focusing on these basic steps कि अगर हमें ये आइडिया हो जाएगा किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, तो उसको उस चीज को अंडरस्टैंड करना इजी होगा, उस मेडिकल डिवाइस को वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. This is the summary. Main body who is governing, regulating or pushing for the enforcement of these rules is the DRAP, जिसके थ्रू मेडिकल डिवाइस बोर्ड जो है वो मेन बॉडी है जो कि डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व है मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलेशंस में. Then all medical devices that are manufactured, imported, exported and sold must be RAP registered or enlisted. ये मैंडेटरी है, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं. इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि कोई भी इंपोर्टेड डिवाइस को जो कि किसी यूरोपियन कंट्रीज में यूज हो रहा है उसको हम यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं. ऑब्वियसली इफ दैट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज, सी सर्टिफाइड, बट द पर्पज इज कि यहाँ पर उसकी प्राइसिंग, उसका स्टोरेज, उसकी स्टोरेज कंडीशन, उसके लेबल्स, उनको इंश्योर किया जाए कि ये सारा कुछ जो एक्चुअल और जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है. देन हमने स्टडी किया रिस्क क्लासिफिकेशन ABCD. मेन जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें जो भी ब्रॉडर टर्म एम्बिएट कवर होता है उसमें जो रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो A, B, C और D है. देन डिफरेंट लाइसेंसेस जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से जो मैंडेटरी लाइसेंसेस हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, कुछ फॉर्म्स दिखाए. मेडिकल डिवाइस बोर्ड जो मेन बॉडी है जो कि इन सब इंस्पेक्शंस में, लाइसेंस के इश्यूएंस में इन्वॉल्व है. कोई भी जो अपील्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको लिसन करती है मेडिकल डिवाइस बोर्ड. एंड देन एग्जाम्पशन पीरियड जो ग्रांटेड इनिशियली थे वो अब सारे क्लोज हो चुके हैं. सो हम प्रैक्टिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे मेडिकल डिवाइसेस को ऑलमोस्ट 99% हम कवर अप करवा चुके हैं, जिसमें ये सारी क्लासेस फॉल करती हैं. इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है और उन पे भी वर्किंग ऑन गोइंग है. ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया, उन पे हमारी बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं विद द वेंडर्स और हमने कंटिन्यूअस उनको टफ टाइम दिया है एंड दे आर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट्स एंड दे आर. आज रिसेंटली मैं अभी उठ के आने से पहले एक वेंडर से हमारी 3 दिन पहले, जस्ट इट्स एन एग्जांपल, 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी और आज और हमने उनको ये पुश किया कि आपका ये आइटम है, यू आर सप्लाइंग एस, तो आप इसको अप्लाई करें. एंड देन दे हैव अप्लाइड और अभी आते हुए मैं उनकी एप्लीकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख के आई हूँ. एंड देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कि हम अगर फिजिकली एक आइटम को देख के नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, सो हम ये सारा डाटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आ सकती है. सो ड्रैप की वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है डिफरेंट फॉर्म्स में, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका जो PDF फॉर्म है, एक इंपोर्ट के जो डिवाइसेस हैं उसकी अलग, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ABCD जो भी है उसकी एक अलग लिस्ट मौजूद है. उसके बाद क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया दैट इट इज नाउ एक्सेलरेटेड, अभी सारी एग्जाम्पशंस खत्म हो चुकी हैं तो ड्रैप इस पे एक्टिवली सब कुछ कर रहा है.
सो दे आर शेयरिंग देयर अपडेटेड मिनट्स ऑफ मीटिंग, हर मिनट्स के, जिसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन उस मेडिकल डिवाइस की, जो उसका इंपोर्टर है, लीगल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर या उसका ब्रांड नेम, सारी डिटेल्स के साथ वो ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे मिनट्स ऑफ मीटिंग की फॉर्म में शेयर कर रहे हैं कि दिस आइटम इज अप्रूव एंड इवन डेफर्ड। हम बहुत सारे ऐसे केसेस भी देख रहे हैं कि जिनको, जो प्रोडक्ट्स वंस रजिस्टर्ड और अप्लाइड स्टेटस के साथ ही अब वो डेफर्ड हैं, और डेफर्ड की रीजंस में ऐसी रीजंस भी नजर आ रही हैं कि द प्रीमिसेस इज नॉट सुटेबल टू मैन्युफैक्चर दिस मेडिकल डिवाइस। सो ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा डिस्पर्स है, बट ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। बट द मेन थिंग इज के एक इनिशिएटिव या आपकी विल इसको अंडरस्टैंड करने की, इस टॉपिक को, क्योंकि अभी नेक्स्ट जितने भी मंथ्स में, जितने भी टाइम्स में, बाय हुक और बाय क्रुक, वी हैव टू गो टुवर्ड दिस, के सारे मेडिकल डिवाइसेस की इम्प्लीमेंटेशन हमें करानी है। सो आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं क्लियर कर सकती थी, मैंने डिलीवर की। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, थैंक यू वेरी मच नाइमा। बहुत अच्छा और कम्प्रिहेंसिव आपका ये सेशन था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके ऊपर, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आर ऑपरेटर्स लाइक डिजिटल बीपी मॉनिटर्स, नेबुलाइजर्स और इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं, क्या ये भी डिवाइस रूल के अंदर आती हैं, और ये क्या इनके लिए भी लाइसेंस जरूरी होता है? जी सर, बिल्कुल ये फॉल करते हैं। जो डिफरेंट अभी आपने नाम लिए, जिसमें आपने नेबुलाइजर मास्क कहे या नेबुलाइजर मशीन्स कहीं, जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं, इवन इफ अ सिंपल फेस मास्क अगर इसके एम्बियंट में फॉल कर रहा है, तो नेबुलाइजर मास्क, नेबुलाइजर मशीन्स, वो सारे के सारे तो इसमें मैंडेटरी करते हैं। और इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ड्रैप रजिस्टर्ड मास्क अब मार्केट में आते हैं। और डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स, इसकी भी इस क्वेश्चन का जी पार्ट है। सर, जी सर, बिल्कुल फॉल करता है। बीपी ऑपरेटर्स भी फॉल करता है। और इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस, नेबुलाइजर मशीन, नेबुलाइजर एटोमाइजर, वो भी फॉल करता है। सर व्हील चेयर्स भी करती हैं। अच्छा। जी सर। क्लास ए में। जी सर, क्लास ए में, क्लास ए में सर शू कैप एंड बियर कवर्ड भी करता है। मिस वजीहा, कैन यू रीड अदर क्वेश्चंस प्लीज, जो Miss, भी क्वेश्चंस हैं। there's a question from Mohammad Nadeem. Why Class A is enlisted and B and C, D are registered? What's the difference in the procedure? I have earlier explained in my main slide that it's very difficult to ensure implementation of the rules or registration of all these devices at once. So risk based classification की गई। A जो है वो least risky हैं, then increasing risk is B, C and D. So A के लिए कंपैरेटिवली जो रजिस्ट्रेशन इनलिस्टमेंट का जो प्रोसेस है इजियर रखने के लिए और उसको एग्जेम्पशन पीरियड देने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे सारे डिवाइसेस फॉल, सारी चीजें फॉल करती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि कैप भी करती है, बियर्ड कवर भी करता है। सो उनको लीस्ट रिस्की होने की वजह से, एग्जाम्पशन पीरियड एक्सटेंडेड होने की वजह से, उनके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज इनलिस्टमेंट, उनको इनलिस्ट कराते हैं हम। और जो बी, सी और डी हैं उसके लिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी इसी वजह से जो यूज हो रही है दैट इज रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए हमने उन्हें क्लासीफाई किया। सो बेसिकली ये दो, ए बी सी डी, 4 क्लासेस हैं, और इनको फर्दर सेग्रीगेट करने के लिए जो हायर रिस्क वाले हैं वो बी, सी एंड डी हैं, एंड ए इज लीस्ट रिस्की। सो दिस इज इनलिस्टेड और बाकी सारे जो हैं वो रजिस्टर्ड। Ma'am, there's another question. Abdul Mateen Khan has asked, please tell me the brief difference between the transient, short-term and long-term devices. अच्छा जी, इसके लिए आप मेडिकल डिवाइस रूल्स, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर पढ़िएगा। और अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ डिवाइसेस का जो यूज के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन है, सो ये 3 क्लासिफिकेशंस बेसिकली उन्होंने ये 3 ड्यूरेशंस बताए हैं। ट्रांजिएंट यूज जो कि सबसे मिनिमम है, दैट इज लेस देन 1 आवर अप टू 60 मिनट्स, ये ट्रांजिएंट यूज है। देन कम्स शॉर्ट टर्म यूज। शॉर्ट टर्म यूज को रूल्स ने डिफाइन किया है फ्रॉम 1 आवर to 1 month, which is more than 1 hour and less than 30 days.
1 मंथ की ड्यूरेशन को उन्होंने शॉर्ट टर्म यूज एंड लॉन्ग टर्म यूज को उन्होंने स्पेसिफाई किया है मोर देन 30 डेज। ये 3 बेस ड्यूरेशन हमारे रूल्स में मेंशन है। Is there any question? Please write down in the question answer box.